Hello friends, today we will discuss the solution of Regional Mathematics Olympiad 2010. Uh, I myself have qualified this examination twice in 2009 and 2010. That's why I am beginning with this 2010 paper. So let's begin with the first question. The question is, let ABCDEF be a convex hexagon in which the diagonal ADBECF are concurrent at O. Suppose the area of triangle OAF is the geometric mean of those of OAB and OEF, and the area of triangle OBC is the geometric mean of those of OAB and OCD. Prove that the area of triangle OED is the geometric mean of those OCD and OEF. So first of all, you have to learn, or you have to see what is this geometric mean. There are three types of series in general. There are more, but let's focus on just three. First one is arithmetic mean, then geometric mean, and then harmonic mean. Geometric mean simply means if there are n series, like A1, A2, A3. So their arithmetic mean will be A1 plus A2 plus A3 by 3, and their geometric mean will be multiplication of all these terms multiplied by A2 multiplied by A3, and then how many terms you have used in this series, that is 3. So this is going to be the geometric mean. And one property is that arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. हार्मोनिक मीन्स एक एडवांस टॉपिक है जो आप बाद में सीखोगे, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ. तो that's the brief about geometric mean, arithmetic mean. Now let's focus on the solution. So suppose this is the hexagon with side A, B, C, D, E, F, and as per the given question and as per the given diagonals. So let OA be the side A, OB side B, OC side C. Like respective name हम दे रहे हैं, corresponding adjust किया करो. OD को E दे दिया, D दे दिया, OE को E, OF को F. Now जो एरिया होगा OAB का उसको हम x क्या दे रहे हैं? सॉरी, सिमिलरली OCD को y कह रहे हैं, OEF को Z, ODE को U, OFA को V and OBC को W. एंड जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन मीन्स अगर कोई एक सीरीज है, तो जैसे हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है. तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे कि अगर A1, A2, A3 एक ज्योमेट्रिक सीरीज के हैं, तो A2 is going to be the geometric mean of A1 and A3, which means A2 is equal to A, which means A2 square is equal to A1 and A3.
तो as per the given condition, the area of triangle OAF is the geometric mean of those of OAB and OEF, which means we have given condition that V square is equal to ZX. Another thing is area of triangle OBC is the geometric mean of those of OAB and OCD, which means W square is equal to X into Y. तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ रख ली. नाउ हमें प्रूव करना है U square is equal to Y into Z. तो अब now we look at the figure. Angle OAB and angle DOE vertically opposite angle है. They must be equal. So कोसाइन लॉ के हिसाब से इसका और इसका एरिया का रेशियो area of triangle is 1/2 product of side into the respective sine cosine of that angle, which means area of this triangle and area of this triangle is 1/2 DE sine DOE upon 1/2 AB sine angle of AOB. आप ये टर्म देखोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा DE by AB, which means ये आपकी पहली कंडीशन हो गई. इसी तरह हमने पहले इनमें और इनमें देखा था, अब हम इसमें और इसमें, उसी तरह इसमें और इसमें हम ये तीनों जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उनके रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स में हम ये फंक्शन निकाल लेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाएगी. पहली इक्वेशन u by x is equal to DE by AB और दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये the second है, ये third है. Now we just have to multiply these three inequalities, then what we will get. या फिर तो जो हमें अचीव होगा, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली ये बचेगा हमारे पास. आप चाहो तो करके देख सकते हो इसे. When these terms get cancel out, तो हम फिर वो रिलेशन आपस में पुट करेंगे. V स्क्वायर इस कंडीशन में U टर्म छोड़ देंगे, V स्क्वायर और W स्क्वायर को हम ZX से और XY से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अल्टीमेटली ये टर्म्स भी आपस में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर z x स्क्वायर y आएगा. तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, z का और फिर y से y का स्क्वायर. तो इट मीन्स आखिरी में हमारा u स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड z बचेगा, विच इज द डिजायर्ड आउटकम. हमें यही प्रूव करना था. तो we have to prove what we have to prove, that area of triangle OED is the geometric mean of those of OCD and OEF. हमें प्रूफ क्या करना था? area of triangle OED area of triangle this is the geometric mean of those of OCD and OEF. इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन है, ये प्रूफ करना था. विच मीन्स u स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू वाई, और वो हमारा इन तीन इनइक्वालिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके अचीव हो गया. दैट मीन्स दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. दैट्स इट. सॉल्यूशंस ट्रिकी होते हैं,
आपको बेसिक नॉलेज होगी, आप फोकस करोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आरएमओ में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है। यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। देयर इज नो सच थिंग लाइक कि आप कैसे करोगे क्या करोगे, सब अपने आप हो जाता है, सो डोंट वरी। और ये टर्म मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि ये कैसे आया। जब आप इन तीन इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, एक मिनट, रोटेशंस, इसको इसको इसको, तो आपस में मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये u by x multiplied by v by y multiplied by w by z, और यहाँ पे आ जाएगा fa by cd multiplied by bc by ef multiplied by d by ab। तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा, ठीक है, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर बाद में u v w, ये सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो बाद में सिर्फ ये टर्म x y z इज इक्वल टू u v w आएगा। वही चीज आपने यहाँ लिखी है, वही चीज यहाँ लिखी गई है, और इसी को स्क्वायर करोगे आप, उसी को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बस। सो ये था पहला सॉल्यूशन, और नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक्स 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 अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से 2010 रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नाउ विल लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, वी हैव थ्री polynomials p1 is equal to ax square minus bx minus c, p2 is equal to bx square minus cx minus a, p3 x is equal to cx square minus ax minus b। अब देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में है हर एक चीज, ए जंप होके सी के प्लेस पे जा रहा है, बी ए के प्लेस पे, सी बी के प्लेस पे, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो हर एक टर्म यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ फिर यहाँ चला जाएगा। एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन है, तो वो क्या रहा है, ये ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, और देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट p1x is equal to p2x is equal to p3x as x is equal to alpha। इन दैट कंडीशन ये होल्ड करेगा, और हमें प्रूव करना है कि ABC अगर ये है तो ABC इक्वल है। सो जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके हिसाब से हम करते क्या है, हम x की जगह अल्फा पुट कर देते हैं p1 पे भी। ये हमारा हो गया p1, ये हो गया p2, ये हो गया p3। तो हमने ये तीन इक्वेशन हो गया, और अल्फा रूट नहीं है, अल्फा सिर्फ वो कंडीशन है जब सारे इक्वल होंगे, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी ए बी, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हमने
लैम्डा कह दिया है, तो लैम्डा कॉमन वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की उस पॉइंट पे। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, आप 3C2 के कॉम्बिनेशन बनाइए, 3 इक्वेशंस बनेंगी, आप उसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर दीजिए। ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, 2 अननोन है, या 3 अननोन मान लीजिए आप, अल्फा स्क्वायर को भी अननोन ही मानिए, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इन 3 इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, सबको हम आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे -b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी -b स्क्वायर इधर से माइनस ए स्क्वायर इधर से माइनस, और 1 मिनट क्लियर, जिनके अल्फा कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर टर्म्स, बी स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर, और बस यहाँ पे एक एरर दे रखी है मैंने कर, ठीक है, यहाँ पे अल्फा आएगा, तो ये ए टर्म, ये 3 टर्म एक तरफ हो जाएंगे, उसी तरह सी ए बी और बी सी ए बी और बी सी, ये टर्म हो गए, इन सबका कोफिशिएंट अल्फा था तो वो एक तरफ, और उसके बाद जिनका कोफिशिएंट, ये सारे टर्म्स ऐसे भी हैं और रिपीट होंगे अलग अलग तीनों क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे, वो भी कॉमन आ जाएगा, विच मीन्स ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग आ जाएगी, कॉमन फैक्टर आएगा अल्फा -1। जब ये आ जाएगा उसके बाद इक्वेशन आई, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है, which means either alpha is equal to 1 or this term is equal to 0. So पहले केस में अगर हम इसे 0 पुट करें तो ये कंडीशन आएगी which is equal to, आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक स्क्वायर टर्म बन जाएगा, ये तभी 0 आएगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, which simply means A is equal to B and B is equal to C and C is equal to, which simply means A is equal to B is equal to C. So this was the desired outcome. हमें ये प्रूव करना था और हमारा वो प्रूव हो गया। So once again, या फिर अल्फा 1 के बराबर है और या फिर A B C आपस में इक्वल है, ये हमारी कंडीशन होल्ड कर गई और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन। एक चीज जरूरी ये है कि आरएमओ में आपको हर एक स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जेई हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें आमतौर पे ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो आप सोल्यूशन कैसा भी रफ करें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे रहे हैं या फिर इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे रहे हैं, उस केस में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ रीजंस आप कोशिश करें कि अगर आपकी कोई कॉपी है तो आप एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम बना लें कि वहाँ पे रफ कैलकुलेशन के लिए आप, ये अंडरस्टूड है कि ये रीजन रफ का है, बाकी सारी कैलकुलेशन आप इधर करें, और अगर कोई भी आप स्टेप ले रहे हैं कि ये हो रहा है फिर वो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी यहाँ पे कॉमन एक्सप्लेनेशन देते चलें, लाइक सिंस ये कि कुछ भी आप रीजन लोगे तो एक रीजन यहाँ पे होना चाहिए, अगर वो रहेगा तो आपको, आप ये मान के चलो कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। दैट्स इट। हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।